پاکستان کا پہلا ایکسپیرینس تھا جو ہوا ہے اور الحمدللہ یہ کامیاب ہو گیا، اور اس سلسلے میں انوائرمنٹ کا محکمہ اور وہ یو اے کی پوری ٹیم جو ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کے چیک کر رہی تھی اور پلان کر رہی تھی، آج الحمدللہ اس کا رزلٹ آ گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آرٹیفیشل رین تھی، پہلے اس کو پروپیگنڈا چاہیے تھا کہ 35 کروڑ روپیہ لگیں گے، 36 کروڑ روپیہ لگیں گے، کابینہ میں جائے گا۔ اب جب یو اے کے تعاون کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو اس پہ ویسے اگر ہم لوگ کام کرتے تو کتنا ایکسپینڈیچر آتا ہے ان دا فیوچر؟ اگر ہم دیکھیں آگے فیوچر میں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے، اور ہوپ فلی اگلے آنے والے وقت میں ہم ضرور خود کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے تھی، ایکسپرٹیز چاہیے تھی۔ یہ لوگ تو دبئی میں بہت زیادہ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سال میں 1000 مشن بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو ان کے پورے ملک میں۔ تو ہم نے اسپیسیفک ابھی لاہور اور اس کے ارد گرد کے علاقے، یہ تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس میں یہ ساری بارش کو ہم پلان کیا ہم نے لاہور۔ جو موسمی بارش کا سلسلہ شروع کیا، پہلا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا، یہ مزید کتنے دن جاری رہے گا؟ اور کیا یہ سارا کام جو ہے یو اے گورنمنٹ کرے گی یا ہماری گورنمنٹ بھی اس میں کچھ حصہ لے گی؟ نہیں، یہ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ تھا ہمیں، جو انہوں نے سارا ہمارے لیے مینیج کر کے دیا۔ ہمارے لوگ ساتھ شامل ہیں اس وقت ایئرپورٹ پہ بھی، اور بھی جو قسم کی ہیلپ اسسٹنس ہے، جہاں جہاں تک ہمارا رول تھا ہم نے ادا کیا ہے۔ ان کا جہاز آج سے 10-12 روز پہلے آ گیا تھا، یہ اسپیشل جہاز تھا، پریکٹیکلی ان کے 2 جہاز آئے تھے اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ موجود تھی، ایمبیسی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم نے اس لیے کوائٹلی رکھا کیونکہ یہ ایک ملک کے ساتھ تھا کہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی، کچھ ہوتا ہے تو پھر کوئی نیگیٹو چیز کہیں نہ آئے۔ انہوں نے یہ یو اے گورنمنٹ کا جسچر ہے، اور میں پنجاب گورنمنٹ کے بیہاف پہ اور اسپیشلی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسپیشلی فون کر کے مبارکباد دی ہے، اور وہ بھی بہت خوش تھے، انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، ہمارے اداروں نے سب نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ تو سارے بہت خوش ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ تھا جو ہمارے لیے ضروری تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں اسموک کا کس طریقے سے روکنا ہے۔ اور اسموک ٹاورز کا آلریڈی آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں انسٹال ہو جائیں گے، بٹ یہ چیز ایسی تھی جو بڑا سینسٹیو معاملہ بھی تھا، اور اب اللہ خیر کرے، ابھی دیکھتے ہیں بارش اور کتنی ہوتی کتنی نہیں ہوتی، لیکن پہلی والی تو جو ہمیں تھا وہ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ایک خواجہ صاحب اس کے بعد آپ اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا جو آج بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں آج بھی لاہور پہلے کل رات ہم 4تھے نمبر پہ تھے، ابھی صبح ہم پہلے پہ آ گئے تھے۔ یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ دیکھیں ہمارے لیے خود نئی چیز ہے، ہم خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، بارش کتنی ہوتی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے، اس کا کچھ گھنٹوں بعد امپیکٹ آتا ہے، کتنا آتا ہے، ابھی یہ سیکنڈ مشن شروع ہو گیا، اس کا کتنا آتا ہے۔ ہم خود الرٹ بیٹھے ہیں صبح سے، آپ سمجھیں کہ یہ 9 بجے سے صبح چل رہا ہے سلسلہ، اور ہم آپ کو فوٹیج وغیرہ بھی ابھی آپ کو جو مشن ہو رہے ہیں اس کی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی حسن سر یہ فرمائیے گا، جیسا آپ چائنا سے بھی آپ کے اس معاملے پر رابطے جاری تھے اور بھی بڑے ریسرچ بھی کی گئی تھی، تو یہ پنجاب حکومت کے ایسا پاسبل ہے کہ آئندہ کی پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے کہ ان سے سیکھ لیا جائے، کیونکہ یہ اسموک تو ختم ہونے والی نہیں ہے، ہندوستان سے بھی کافی سارا پریشر آ جاتا ہے، یہاں سے بھی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے، وہاں سے بھی، تو وہ ایک خطرناک سچویشن بن جاتی ہے۔ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو لانگ ٹرم ہیں، کچھ چیزیں شارٹ ٹرم ہیں۔ ہم نے ایز اے اسٹریٹجی دونوں چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہمارا خود یہ پہلا ایکسپیریمنٹ ہے تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا، لیکن بارش ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اس کا جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ ابھی ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے جائے گا، 100% نیچے جائے گا، یہ تو یقینی بات ہے کہ ہوگا۔ یہ بتائیں کہ آپ اپنے پرفارمنس اور اسپیڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے تو آپ نے اچھا کام کیا، کیا آپ اپنی یہ ایکسپرٹیز دوسرے صوبوں کو بھی دیں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں ہم سیکھ رہے ہیں، بالکل سیکھ رہے ہیں، اور جو اگر ان کو ہیلپ چاہیے ہماری ایکسپرٹیز ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اب تک
पंजाब हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा कर चुकी है, कारोबारी तौर पर आपने दुकानें बंद करवाई, कितना लॉस हो चुका है, और इस हवाले से ये गुज़िश्ता 3 साल से एक प्रैक्टिस चल रही है, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट का फैसला आता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता, जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है उसका फ़ायदा नहीं होता, तो क्या आप समझते हैं कि अगले साल स्मोक से निजात मिल जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। कारोबारी कितना लॉस हुआ? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका इस टाइम हार्ट फेल हो जाए और बाईपास हो, आप खर्चे की तरफ जाएंगे? ठीक है ना? नहीं, आप सोचेंगे ज़िंदगी बचानी है या खर्चा देखना है। पहली बात ये कि वो 35 करोड़ वाली खबर बिल्कुल जाली थी, ठीक है, आप में से दोस्त बैठे थे जिन्होंने वो खबर दी और उसकी कोई हकीकत नहीं थी। दूसरा, सवाए पानी के छिड़काव के और उसके हमने कोई स्पेशल खर्चा नहीं किया। तीसरी बात है, मेरा ये बिलीव है कि अगर खर्चा करना पड़े भी, अगर करना पड़ता तो मैं बिल्कुल हेसिटेट ना करता, और मैं करता बगैर खौफ के, बगैर किसी चीज़ के। लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ये खबर इम्पोर्टेंट नहीं होती। एक सेकंड, मेरा सवाल है, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको मिशन कामयाब करने में। दूसरा ये बताइए कि आपका जो टारगेट था कि आप कितने बिजली में दोबारा जो आप करना चाहते थे, ये बताइए कि आपने इसमें अपना टारगेट कितना अचीव किया? ये रात तक पता चलेगा, रात तक पता चलेगा कि क्या कितनी बारिश आती है, कितना रिजल्ट आता है। बेसिक मकसद था कि बारिश होके इतना हो जाए कि ये स्मोक बैठ जाए, क्योंकि स्मोक बैठती है तो 5-7 दिन का इसका असर रहता है उसके बाद। तो अब लेट्स सी कि क्या होता है। देखें, ये आज रात को जब सारे रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करें। क्योंकि ये मैन मेड रेन होती है, तो लोगों के ज़हन में ये भी सवाल होता है कि केमिकल के जरिए रेन हुई है, इसके कोई हेल्थ हैजर्ड्स तो नहीं है, कोई नुकसानात तो नहीं है। दूसरा, ये तो एक शॉर्ट टर्म आपने सोल्यूशन निकाला है, लॉन्ग टर्म में जो स्मोक एमिशन का बायस बनती है वो हमारी ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए क्या करें? हमारा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, हमारी बाकी जो चीज़ें वो एफिशिएंट नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा, पहला सवाल आपका उसमें क्या? देखें, अगर दुबई एग्जैक्टली यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर, मैं सिर्फ लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि जी पता नहीं इसका क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। अगर यूएई में ये 1000 मिशन एक साल में होते हैं तो पाकिस्तान में तो 1 मिशन हुआ है। वो किसी सूरत भी, अमेरिका में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया में भी हो रही है। अगर ये सेहत के लिए ख़राबी होती तो किसी सूरत भी ये कोई भी मुल्क इसको इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा सवाल आपका क्या था? देखें, उसके ऊपर एक चीज़ एडमिट करनी पड़ेगी, आज से 2 माह पहले हम भी, गवर्नमेंट भी और मीडिया भी कहता था कि ये सारी स्मॉग हो रही है फसल की बाकियात की वजह से। आज तो फसल की बाकियात सिर्फ 2 से 3% है, स्मॉग तो उतनी है, ठीक है। अब मैं भी इसका जवाब दूँ और आप लोग भी जवाब दें जो रोज़ इसको खबर चलाते थे कि जी ये तो बाकियात की वजह से हो रही है। अरे भाई, अगर बाकियात की वजह से हो रही है तो आज बताओ कि आज तो बाकियात 1% पे रह गई हैं, तो फिर क्यों स्मॉग है? पहली बात, इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली पता करना कि इसमें ट्रैफिक का कितना इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इंडिया से जो हवा आती है उसका कितना इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उस टाइम जल रहे थे तो वो बढ़ रही थी, लेकिन मेरा अब अपने आप से सवाल है कि भाई इस टाइम तो वो नहीं है, इस टाइम क्यों बढ़ा हुआ है? तो हमें इसके लिए हमने रिसर्च के लिए ऑलरेडी टीम असाइन कर दी है, इसकी एग्जैक्ट स्टडी पता चले, इसको पता चले कि इसमें कितना % रीज़न ट्रैफिक का है, कितने % रीज़न बाकी एलिमेंट्स हैं, कितने % जो है वो फसल की बाकियात या बाकी कोई जलाओ चीज़ें होती हैं। अभी हम, अगर आप सच्ची बात करें तो ब्लैंक है। मैंने ये सीखा इसमें कि इसकी रिसर्च प्रॉपर ज़रूरत है, रिसर्च हो ताकि जो भी अगली गवर्नमेंट हो उसके सामने कोई रिपोर्ट हो कि वो फैसला कर सके। खाली मीडिया की खबरों से या हवाई खबरों से हमें डिसीजन नहीं करने होते, हमें रिसर्च करनी चाहिए और अभी नहीं है। मैं मानता हूँ इस बात को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तजर्बा तो हो गया कामयाब, क्योंकि बारिश देखने को मिली है, लेकिन ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि वो इंडियन ज़ाब्ते खारजा से रब्ता करेंगे और वहाँ पर भी स्मोक को रोकने के लिए इंडियन पंजाब में लायाबल बनाएंगे या वहाँ पर जो कोशिशें हैं वो करेंगे, जो अभी तक नजर भी नहीं आ रही।
तो क्या पंजाब जो है वो दोबारा मुझे इस मामले में रास्ता करेगा कि वो इंडियन पार्टी से बात करे? आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट का वो है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जी बात ये कि 2-3 साल से ये मसला आ रहा है, पुरानी हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने क्या कोई रिसर्च स्टडी नहीं करवाई, क्या वजह? ये रैंडम रिसर्च है, बट प्रैक्टिकली देखें, मेरे अपने सवाल है ना, मैं अगर ये अपने आप से सवाल करूँ कि भाई अब क्यों है, ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो चीज़ करनी है, किसी के कहने पे गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, चीज़ खुद करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि होपफुली जो अगली गवर्नमेंट भी आएगी, अगर उसके पास अच्छी रिसर्च होगी तो फैसले करने में आसानी हो जाएगी। जैसा कि कारोबार और मार्केट बंद होते हैं, इससे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमसे ट्रांसपोर्ट नहीं है अवेलेबल, जो हमारे ज़्यादातर उनको पाबंद नहीं किया जा सकता कि बजाय जो इंडिविजुअल आते हैं लोग काम पे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या यूज करें या वो कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि ये जो रोड पे ट्रैफिक भी कम हो सके और ये पोल्यूशन भी सिटी में कम। भाई हमारे तो लोग हैं वो लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला लेते हैं, ये तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप। जी लियाज साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है, अभी स्मोक की वजह से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स भी हमारे आउटडोर बंद है, आउटडोर खुल गए भाई, खुल गए। हैं जी, अभी टेक ऑफ करने लगे थे, जब मैं आ रहा था तो उस टाइम टेक ऑफ करने लगे थे, तो अभी वो देखते हैं कितना फायर करते हैं शॉट्स, उसके बाद पता चलेगा कि उसका नहीं हो या रही है। शादरा पे जाके और वो मुरीद के पे कर रहे हैं, क्योंकि बादल आ रहे हैं इस लाहौर में, तो वो वहाँ पे करते हैं, उसको असर होते होते घंटा लगता है। तो उन्होंने बड़ी एक चीज़ की उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि किधर जाके वो फायर करेंगे तो उसके बादलों पे असर आएगा और लाहौर में बारिश होगी। बढ़िया टेक्निकल काम है जी। देखें, रात को जब धुलाई हो रही थी ना, और प्रैक्टिकली बड़े मैसिव स्केल में हो रही थी, रात को मुझे याद है, मैं अभी 4 बजे सुबह जब मैंने उठ के चेक किया है तो उस टाइम हम 250 पे आ गए थे। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ये नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली हमने तो इसको बिल्कुल 100 से भी नीचे लेके जाना है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो काम करना है, उसके लिए ज़रूरत है। नहीं, आज लाहौर में हुई है, बट उसके बाद ये है कि एक दफ़ा पता चल जाएगा कि पहली दफ़ा हुई है, हम खुद इसको एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रात को बैठेंगे, उसके बाद अगला फैसला करेंगे। हो सकता है 1% हो, 1% से भी लेस हो। आप ये बताएं, एक बस कितने की आती है, अंदाज़ा कोई? अब आप स्कूल वाले को कहें कि 30-40 करोड़ की बसें ले लो, 10 ले सकता है? होना चाहिए, लीज पे लेनी पड़ेगी उनको, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। खाली कह देना मसला हमारा ये कि हम कह देंगे और उसके बाद एक दिन हो जाएगा, उसके बाद होती नहीं चीज़। और प्रैक्टिकली जाए ना, कैसे करेंगे? एक प्राइवेट स्कूल है, आप उसको कहते हैं 20 करोड़ की बसें ले लो, भाई कहाँ से लाएगा वो बसें? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करेगा, वो कोऑर्डिनेट करके करेगा। हाँ बिल्कुल देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ये हाल है। चाइना में यकीन करें कोई एक मोटर बाइक नहीं है जो फ्यूल से चलती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो ज़रूरी हैं, आज नहीं तो कल वो हमें करनी पड़ेंगी। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं कहता हूँ कि 3 साल बाद ये इलेक्ट्रिक बाइक ही बिकनी चाहिए, बाकी बाइक से बिकनी बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना ज़ाती राय है, एक्सपर्ट्स नहीं, आप बस की तो दूसरी मोटर बाइक भी तो इतने की है नहीं। चाइनीज